Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 20 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from CAT 23 slot 2 paper and the set says Anjali, Bipasha and Chitra visited an entertainment park that has 4 rides. Each ride lasts 1 hour and can accommodate one visitor at one point. All rides begin at 9 a.m. and must be completed by 5 p.m. except for ride 3 for which the last ride has to be completed by 1 p.m. Ride gates open every 30 minutes, example 10 a.m., 10:30 a.m. and so on. Whenever a ride gate opens and there is no visitor inside, the first visitor waiting in the queue buys the ticket just before taking the ride. The ticket prices are rupees 20, rupees 50, rupees 30 and rupees 40 for ride 1 to 4 respectively. Each of three visitors took at least one ride and did not necessarily take all ride. None of them took the same ride more than once. ठीक है, the moment time from one ride to another is negligible and a visitor leaves the ride immediately after the completion of the ride. No one takes a break inside the park unless mentioned explicitly. The following information is also known. Chitra never waited in the queue and completed her visit by 11 a.m. after spending rupees 50 to pay for the ticket. Anjali took ride 1 at 11 a.m. after waiting for 30 minutes for Chitra to complete it. It was the only ride where Anjali waited. Bipasha began her first three rides at 11:30 a.m. All three visitors incurred the same amount of ticket expense by 12:15 p.m. The last ride taken by Anjali and Bipasha was the same, where Bipasha waited 30 minutes for Anjali to complete her ride before standing in the queue for that ride. Bipasha took a hour break, 1 hour break, coffee break after completing her previous ride. एक बार क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय दी spent on tickets by Vipasha, which were all the rides that Anjali completed by 2 p.m. Which ride was taken by all three visitors? How many rides did Anjali and Chitra take in total? What was the total amount spent on tickets by Anjali? ठीक है. स्केड्यूलिंग का एक और सेट कैट 23 के पेपर में, कैट 23 के स्लॉट 1 में एक स्केड्यूलिंग था और एक और यहाँ पे स्केड्यूलिंग है जहाँ पे अपने को ABC 3 कैरेक्टर है, वो कुछ एंटरटेनमेंट पार्क पे गए जहाँ पे वो राइड पे जा रहे हैं. ठीक है, अब वो राइड की स्केड्यूलिंग करनी, मतलब हमें ये देखना है कि किस टाइमलाइन पे कौन से राइड पे कौन बैठा हुआ था, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, 4 राइड है, चारों राइड का फेयर दिया गया है 20, 50, 30, 40, 1 to 4 रिस्पेक्टिवली, और बोला हुआ है कि 9 बजे शुरू हो जाता है ये और हर आधे घंटे पे गेट खुलते हैं, मतलब 9 से 9:30, 9:30 से 10, फिर 10:30, 11:30, 11 एंड सो ऑन टिल 5 p.m. फॉर राइड 1, राइड 2 एंड राइड 4 एंड फॉर राइड 3 इट इज टिल 1 p.m. ठीक है, 1 p.m. पे वो अपने गेट बंद हो जाते हैं. अच्छा, अब ऐसा हुआ कि हर आधे, जो एक पूरी राइड है वो 1 घंटे के लिए होती है, मतलब लेट्स से मनवीर आया, मनवीर ने 10:30 बजे वाली राइड ली तो वो 11:30 पे खत्म हो रही है, एंड इस तरीके से अपने को क्रंच करना होगा. ठीक है, अब मैंने क्या करा है, एज यूजल एक टेबल सोच लिया, मैंने क्या करा, एक टेबल बनाया जो कि कुछ ऐसा है, जहाँ पे मैंने क्या करा, 9 से लेके 5 बजे तक का स्केड्यूलिंग कर ली है, और मेरे को 1 2 3 4 में देखना है कि कौन कहाँ पे क्या आ सकता है. अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दी वैसे वैसे मैं इस चीज़ को फिगर आउट करता रहूँगा. पहले तो मेरे को पता है कि फेयर लिख लेता है, ये कितना है 20 है, ये कितना है 50 है, ये है तुम्हारा 30 और ये है 40. ठीक है, 20, 50, 30 और 40. अच्छा, इसके बाद अपने को पता था कि राइड 3 है जो 1 बजे खत्म हो जाती है, यानी 1 बजे के बाद राइड 3 है जो कि अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अब एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए चलते हैं और उस हिसाब से दिमाग चीज़ों को प्लान करते हैं. ABCD ने 4 राइड ली, हर राइड जो 1 घंटे के लिए चलने वाली है, दरवाजे 9 से 9:30 हर आधे आधे घंटे पे खुलेंगे, और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ तक तो मैंने चीज़ों को लिख लिया. यहाँ से चलते हैं. ईच ऑफ द 3 विजिटर टू एटलीस्ट 1 राइड, कम से कम एक राइड तो ले रहा है, मतलब कोई भी जीरो पे नहीं जा रहा है, एक तो लेगा ही लेगा. मैक्सिमम 1 कैन टेक इज 4. क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है नन ऑफ देम टुक दी सेम राइड मोर देन वंस, किसी ने भी एक राइड को एक से ज्यादा नहीं लिया हुआ है, तो यानी कि मैक्सिमम 1 कैन हैव इज 4 राइड्स. ठीक है, अच्छा, द मोमेंट टाइम फ्रॉम वन राइड टू अनदर इज नेग्लिजिबल, मतलब लेट्स से अगर मेरे को प्लान करना है 10:30 पे मेरा एक राइड खत्म हो रही, तो इमीडिएटली नेक्स्ट राइड आई कैन स्टार्ट एट 10:30. डिपेंड्स कि मेरे को वेट करना है कि नहीं करना है, बट ये पॉसिबल है 10:30 पे ही आई कैन कंप्लीट वन राइड एंड इमीडिएटली आई कैन स्टार्ट वन राइड, ऐसा ये कहना चाह रहा है. डो वन टेक अ ब्रेक इन साइड द पार्क इन अनलेस मेंशन एक्सप्लिसिटली, कोई भी ब्रेक नहीं ले रहा, अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो ही हम इस चीज को कंसिडर करेंगे, नहीं तो कोई भी ब्रेक ऐसा नहीं ले रहा है. अच्छा, चलते हैं एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं. चित्रा नेवर वेटेड इन द क्यू एंड कंप्लीटेड हर विजिट बाय 11 a.m. आफ्टर स्पेंडिंग ₹50 टू पे दी टिकट. ठीक है, अच्छा, ए है, बी है और सी है. सी ने क्या करा, ₹50 खर्च करे और 11 बजे अपना
चली गई, 11 बजे गई है, ठीक है। अब यहाँ तो क्या हुआ होगा, इसने एक ही राइड ली है, ऐसा हो सकता है, जो कि लेट्स से 10 बजे आया, 10 बजे आके 10 से 11 एक राइड ली और चली गई, या 9 से 10 और 10 से 11 हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 राइड, जहाँ पे 20 और 30 का करके हम कर सकते थे, ठीक है। और पढ़ते हैं, ये 2 पॉसिबिलिटी अपने दिमाग में क्लिक करी। अब और पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला हुआ है। अंजलि टुक राइड 1 at 11 AM। अंजलि ने क्या करा, राइड 1 ली, और कितने बजे ली, 11 बजे, यानी कि यहाँ पे ली होगी तो ये 11 से 12 इसकी राइड 1 चली होगी, ठीक है। अंजलि का एक अपने को मिल गया, विच इज ऑफ कौन सा, 20 रुपीज वाली एक राइड है, ठीक है। अच्छा, अंजलि टुक राइड 1 at 11 AM आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, और इसको 30 मिनट वेट करना पड़ा उस राइड के लिए, फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट। अच्छा, ये ऐसा हुआ होगा कि ये 10:30 बजे आ गई राइड लेने के लिए, ठीक है, और इसने देखा कि राइड 1 पे ऑलरेडी चित्रा राइड पे ऑलरेडी वो यूज कर रही, वो उस राइड पे वो बैठी हुई है, ठीक। तो 10:30 से 11 इसने वेट किया और 11 बजे इसको मौका मिला। अच्छा, अगर ये 10:30 से 11 चित्रा ये यूज कर रही, तो यानी कि चित्रा 10 से 11 आई होगी, तभी पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि चित्रा ने 10 बजे से 11, क्योंकि 1 घंटे तक ये यूज करेगी, यानी कि हम जो ये 50 रुपए का क्रंच कर रहे थे, जिसमें हम सोच रहे थे कि एक तो 50 + 0 हो सकता है, तो अब ये तो नहीं है, ये क्या होने वाला है, 20 + 30 होने वाला है, ठीक। यानी कि चित्रा 9 बजे आ गई होगी, जो कि उसने क्या करा, पहले राइड नंबर 3 ली, विच इज ऑफ 30 रुपीज, और 10 बजे उसने राइड नंबर 1 ली, विच इज ऑफ 20 रुपीज, और दोनों करके अपना 11 बजे निकल गई, ठीक है। तो यानी कि चित्रा का टाइम मिल गया, विच इज ऑफ 9:30, एंड चित्रा का एग्जिट टाइम मिल गया, विच इज ऑफ 11। चित्रा के दोनों राइड भी मिल गए, शी इन टोटल शी स्पेंडेड ₹50, ये भी निकल गया। अच्छा, और पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 को हमने यूज करके कुछ ये चीजें कर ली। अंजलि टुक राइड 1 at 11 AM, लिख लिया, आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट, इट वॉज द ओनली राइड वेयर अंजलि वेटेड। अंजलि ने केवल यही राइड में वेट करा हुआ है, ठीक है, यानी कि अंजलि का जो टाइम होगा आने का वो 10:30 ही रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इसने जो भी राइड ली हैं वो बैक टू बैक ली है, मतलब इसने 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 एंड सो ऑन, जो भी मिलने वाला वो होने वाला है, ठीक है। अच्छा, बिपाशा बिगेन हर फर्स्ट ऑफ 3 राइड एट 11:30। बिपाशा ने क्या करा, जो अपनी पहली राइड ली थी वो 11:30 पे ली, ठीक है, पहली राइड इसने 11:30 पे ली। ऑल 3 विजिटेड इनकर्ड द सेम अमाउंट ऑफ टिकट एक्सपेंस बाय 12:15। 12:15 तक तीनों ने सेम अमाउंट खर्च करा था। सेम अमाउंट क्या होना चाहिए, अगर हम बात करें तो सेम अमाउंट 50 रुपये होगा, क्योंकि सी ने क्या करा, ये तो 11 बजे एग्जिट कर चुका है, और हमें कह रहा है कि 12:15 तक तीनों ने सेम अमाउंट खर्चा करा है, तो भाई सी एग्जिट कर चुका है 50 रुपये खर्च करके, तो यानी कि तीनों का ही 50 रुपये रहा होगा टिल 12:15, ठीक है। अच्छा, बी ने 11:30 पे पहली राइड ली और वो 12:30 तक खत्म हो रही है, तो 12:15 तक इसका 50 रुपये कैसे खर्च हुआ होगा, ये चीज हम सोच पा रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब इसने 50 रुपये वाली राइड ली होगी, यानी कि यहाँ पे 11:30 से बी का शुरू हुआ होगा टिल 12:30, ठीक है। ऑल्सो ए के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज ए ने भी खर्च करा होगा, ए अभी तक 20 रुपये खर्च कर चुका है, तो ए ने क्या किया होगा, 30 रुपये और खर्च किया होगा, यानी कि ए का जो खर्चा है 11 से 12 तक 20 रुपये था, तो इसने 12 बजे क्या करा, 30 रुपये वाली टिकट खरीद ली, यानी कि ये टिकट खरीद ली, ये वाली। इसने क्या करा, 12 बजे ये टिकट खरीद ली, ये वाली। इससे क्या हुआ, एक तो ये वेटिंग भी नहीं आया, जो पॉइंट नंबर 2 में कह रहा था कि उसका कोई वेटिंग नहीं था, दूसरा 12:15 तक इसके भी 50 रुपये खर्च हो गए, यानी कि ये जो पॉइंट नंबर 3 अब मेरा आराम से निकल गया, जिससे मैंने 2 चीजें निकाली। पहला कि जो बिपाशा की जो पहली राइड रही होगी, इट हैज टू बी राइड नंबर 2, ठीक है, और इसका जो ए का जो दूसरी राइड रही होगी, दैट हैज टू बी राइड नंबर 3, ठीक है। और पढ़ते हैं। द लास्ट राइड टेकन बाई अंजलि एंड बिपाशा वॉज सेम, वेयर बिपाशा वेटेड फॉर 30 मिनट्स एंड अंजलि टू कंप्लीट हर राइड। अच्छा, जो लास्ट राइड है वो अंजलि और बिपाशा की सेम होने वाली है, जहां पे बिपाशा ने वेट करा अंजलि की राइड खत्म होने के लिए। बिफोर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर दैट राइड, बिपाशा टुक अ 1 hour कॉफी ब्रेक आफ्टर कंप्लीटिंग हर प्रीवियस राइड, ठीक है। बिपाशा ने क्या करा, उस जो लास्ट राइड को खत्म करने, जब वो करने जा रही थी, उसके पहले इसने 1 घंटे का ब्रेक लिया। कब, ये अपनी जो सेकेंड राइड खत्म करने के बाद, ये पॉइंट ही कहना चाह रहा है, मतलब बिपाशा ने फर्स्ट राइड खत्म करी 12:30 तक, फिर एक और राइड खत्म करी 12:30 के बाद, यानी कि 12:30 से 1:30 तक,
फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया। 1 घंटे का ब्रेक लेने का मतलब 1:30 से 2:30 ब्रेक लिया और आधे घंटे वेट किया 2:30 से 3 तक का, और 3 बजे इसको लास्ट राइड अपनी यूज करने के लिए मिली। ठीक है, अब वो लास्ट राइड कौन सी होगी, क्या हम ये सोच सकते हैं? अगर ये दिमाग लगाया जाए तो अपना काम बन सकता है। ठीक है, अब अपने को क्या पता है बिपाशा की जो लास्ट राइड पॉसिबल है वो कितने बजे होने वाली है, हमने अभी कैलकुलेट करा था 11 से 1 ये इसकी फर्स्ट राइड होने वाली है। इसकी सेकेंड राइड कब होने वाली है अगर आप बात कर सकते हैं तो इसकी सेकेंड राइड होगी 12:30 से 1:30। ठीक, फिर 1:30 से 2:30 ये वेट करेगी और इसकी जो थर्ड राइड होगी वो क्या होने वाली है 3 बजे से 4 बजे तक। ठीक, ये 3 से 4 कहाँ पे आया, बेसिकली ये समझना 12:30 से 1:30, फिर 1 घंटा ये कॉफी के लिए रुकेगी जो कि 1:30 से 2:30 हो गया, और 2:30 बजे जब ये गई तो इसने देखा कि उस राइड को ऑलरेडी जो ये अंजलि है वो अपना यूज कर रही है, तो इसने आधे घंटा वेट किया, यानी कि इसके लिए 3 से 4 बजे थर्ड राइड आने वाली है। अच्छा, 3 से 4 का मतलब इस वाले की बात हो रही है। ठीक है, इस बजे पे जो थर्ड राइड है वो कौन सी हो सकती है, राइड 1 हो सकती थी, राइड 2 हो सकती थी, राइड 4 हो सकती थी, यही हो सकती थी, क्योंकि राइड 3 अब इस पॉइंट पे क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अच्छा थोड़ा और दिमाग से अगर लगाते हैं, क्या वो राइड 2 हो सकती है? राइड 2 नहीं, क्योंकि राइड 2 तो बी ने ऑलरेडी यूज कर लिया, और यहाँ पे लिखा था कि कोई भी एक आदमी एक राइड को एक बार से ज्यादा यूज नहीं करता है। क्या वो राइड 1 हो सकती है? पॉसिबली यस। क्या वो राइड 4 हो सकती है? पॉसिबली यस। अब इन दोनों में थोड़ा नैरो डाउन किया जाए कि राइड 1 या राइड 4 क्या होना चाहिए। राइड 1 हो सकती है क्या? अगर राइड 1 की ये लास्ट राइड बी की है तो यानी कि इसकी भी ए की भी लास्ट राइड ये रही होगी, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दो इसने तो अपनी फर्स्ट राइड ही राइड 1 ली थी। बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि ये जो लास्ट राइड फॉर बी है वो क्या होना चाहिए, राइड नंबर 4। ठीक, फिर से ये पॉइंट समझाता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ से थर्ड राइड का टाइम स्लॉट निकाल दिया। मैंने क्या देखा, 3 से 4 में कौन सा टाइम स्लॉट पे अपन राइड कर सकते हैं, बी को कौन सी राइड दे सकते हैं। राइड 2 नहीं दे सकते बिकॉज ऑलरेडी एलोकेटेड है। राइड 1 और 4 दे सकते थे। मैंने राइड 1 पे जब दिमाग लगाया तो मेरे को पता चला कि भाई ए का फिर ये दोनों होना चाहिए था, क्योंकि वही लास्ट राइड दोनों की सेम है ना। लेकिन मैंने क्या देखा, ए ने तो ऑलरेडी ये वाली राइड को यूज कर लिया, मतलब ये राइड का टिकट तो इसने पहले ही लेके यूज कर लिया था, तो बाय दैट लॉजिक आई कंक्लूडेड कि ये क्या होना चाहिए, बी का ये होना चाहिए। अच्छा, ऑल्सो ए का ये होना चाहिए। ठीक, अब ए की जो चौथी राइड है वो क्या रही होगी, देखो 11 से 12 ये, 12 से 1 ये, और 1 से 2 अभी खाली है। 1 से 2 क्योंकि वो वेटिंग जोन नहीं रहने वाला, कोई भी उसका वेटिंग नहीं रहने वाला, तो 1 से 2 कौन सा रहने वाला है, 1 से 2 इसका रहेगा राइट 1 हो गई, राइट 2 हो गई, सॉरी राइट 2 बाकी है, तो यहाँ पे हम दे देंगे एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब अपने पास एक है जो कि बी का आइडेंटिफाई करना बाकी। बी के बारे में क्या पता था, बी जो है यहाँ पे करती है और बैक टू बैक इसके बाद एक और राइड लेती है। एक और राइड कौन सी ले सकती है, वो 1 ले सकती थी, 4 ले सकती थी। ठीक है, 3 नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पे 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। 1 और 4 में से कौन सी लेगी, 1 ही लेगी, क्योंकि 4 अपने को दिख रहा है कि 4 यहाँ पे फ्यूचर में जाके, मतलब उसके 4 घंटे के बाद जाके वो यूज करने वाला है, यानी कि ये कौन सा लेने वाला है, बी यहाँ और यहाँ। अब देखो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बी 11:30 पे आया, आई 11:30 से 12:30 ये, 12:30 से 1:30 ये, फिर 1:30 से 2:30 का ब्रेक लिया, और आधे घंटे के बाद जब इसको राइड नंबर 4 पे जा रहा था इसने देखा कि ए ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो यहाँ पे इसने वेट करा एंड देन शी टुक दिस पर्टिकुलर राइड। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आते सीधे क्वेश्चन पे, बिकॉज अपने को यही चारों की तीनों के राइड निकालने थे सब स्लॉट पे, वो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन पे देखते, क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा है क्या, फिर उसके हिसाब से थोड़ा अपन सोचते हैं। जैसे क्वेश्चन में 1 में पूछा व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टिकट बाय विपाशा। विपाशा ने क्या करा, एक तो यहाँ पे है यानी कि 50 रुपये, एक यहाँ पे है यानी कि 50 और 20 70 रुपये, और एक यहाँ पे है यानी कि 110 रुपये, यानी क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच वर ऑल दी राइड्स दैट अंजलि कंप्लीटेड बाय 2 PM। अंजलि ने 2 बजे तक कौन सी राइड कंप्लीट करी थी, राइड नंबर 1। ठीक है, अंजलि ने राइड नंबर 3 भी कंप्लीट करी थी 2 बजे तक, और राइड नंबर 2 कंप्लीट करी थी, यानी कि राइड नंबर 1 2 और 3 ऑप्शन में 1 2 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है राइड नंबर 1 2 एंड 3। विच राइड वॉज टेकन बाई ऑल 3 विजिटर्स। ऐसी कोई राइड जो तीनों ने यूज करी, राइड नंबर 1 है, देखो ए बी सी तीनों आ रहे, राइड नंबर 2 में केवल बी और ए आ रहे, राइड नंबर 3 में केवल ए और सी आ रहे, राइड नंबर 4 में ए और बी आ रहे, यानी कि इट शुड बी राइड नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी राइड्स डिड अंजलि एंड चित्रा टेक इन टोटल। अंजलि ने 4 लिए, चित्रा ने 2 लिए, यानी कि क्या आना चाहिए, 6। आंसर क्या होना चाहिए, 6, 4 + 2। अंजलि का यहाँ पे दिख रहा है 4 है और सी का 2 है। ठीक है,
व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन टिकट्स बाय अंजलि? अंजलि ने क्योंकि चारों राइड लिए तो चारों का सम कर लेंगे, तो 50, 40, 90, 90 और 30, 120 और 20, 140, 140। ठीक है, तो आई वुड रेट इस एज अ इजी मॉडरेट सेट, मतलब एग्जाम वाले फेज में ज़रूर से ये होता और करना लोगों ने किया भी था। तो दिस वॉज इस पर्टिकुलर सेट का ये सबसे इजी सेट तो मेरे को ये वाला लगा। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।